जैसे मैंने बताया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोर्ड के लिए भी और अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए. So I want to write some of the characteristics. Just recall the characteristic. Okay, I'll say key points. First one is it is a single step reaction. It is single step reaction. है कि नहीं? There is a formation of one transition state. Formation of transition state is not considered as a step. Remember that. Second point, nucleophile attack from backside. Nucleophile attacks from backside. Backside मतलब front side क्या होता है फिर? Front side is जहां पे अपना living group present है. Okay, जहां पे अपना living group present है. That is called as the front side. उसके opposite side से nucleophile attack करते हैं. Okay, pentavalent transition state is formed, which is trigonal bipyramidal. Pentavalent transition state is formed. Transition state is formed, which is trigonal bipyramidal. Bipyramidal. Okay. Since partial negative charge is present on transition state, so presence of electron withdrawing group stabilize the transition state, hence reaction is faster. ये हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे. Okay, since partial negative charge is present on transition state, so presence of electron withdrawing group stabilizes transition state. Hence, the reaction is faster. Is fast. Okay. Next one, kinetics. What do you mean by kinetics? Rate of reaction is directly proportional to concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. Right? So, what is the order of the reaction? Therefore, order of reaction is 2, and since it is a single step reaction with two reactants, so molecularity is 2, bimolecular reaction. Molecularity is 2. Okay, therefore, this reaction is called as nucleophilic substitution by molecular reaction. Nucleophilic substitution by molecular reaction.
ठीक है, by molecular reaction. And one more point, stereochemistry. Stereochemistry, it involves stereochemistry. क्या होता है? 100% inversion of product. What do you mean by inversion of product? अगर कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट लेओ रोटेटरी है. अगर कंपाउंड आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो प्रोडक्ट एस कॉन्फ़िगरेशन वाला रहेगा. आरएस नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा था, कार्तिक जी. यस सर, पढ़ा था ना, याद है? और सर चलो ये पॉइंट सब वापस एक बार सब लिखो. राइट डाउन वंस अगेन. जल्दी लिखो. Those who are giving boards only, those who are emphasizing on a CET, please read the textbook. टेक्स्ट बुक को रीड करना. रीड मतलब बाय हार्ट नहीं, रीड मतलब उसको दिन में 3-4 बार पढ़ो. वीक हर रोज पढ़ो, हर रोज टॉपिक को पढ़ते जाओ. चलो, if you have done, should we move ahead? और मतलब ये सब पॉइंट्स है ना, ये तुम लोग अपने बोर्ड के आंसर में डाल सकते हो. ठीक है. चलो आगे जाए. Then you need to write mechanism. So mechanism क्या है देखो. Just see all of you. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं रहा, जस्ट टेकिंग दी. ऐसे लिख सकते हम लोग. सी, ये समझो आर है. दिस इज डी, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, और ये एक्स है. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा? फ्रॉम बैक साइड. नाउ व्हाई बैक साइड अटैक? बिकॉज फ्रॉम फ्रंट साइड देयर विल बी स्टेरिक रिपल्शन. आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्स होना चाहिए. सो हियर आई एम पुटिंग एक्स, मतलब आयोडीन. ओके. सो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करना चाहिए? यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा. सो देयर इज अ फॉर्म. ये हो गया RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप. एवरीबॉडी नो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, chemical kinetics. So that there is a formation of
पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे D, यहाँ पे H, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है I माइनस, ये डेल्टा माइनस हो गया, और ये है न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर भी डेल्टा माइनस। सो द नेट चार्ज ऑन दिस ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? डेल्टा माइनस नेट। दिस इज हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ओके, दिस इज पेंटावैलेंट, और मैंने क्या बताया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बताया? ट्राइगोनल बाइपोलर। नाउ इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल forms a bond with this, okay, and therefore there will be inversion of configuration. There will be inversion of configuration. Understood? Inversion of configuration. अगर मैं समझा ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अभी देखो ना यहाँ पे चलो अभी ये मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना। यहाँ पे मैं CS3 लेता हूँ, समझो, हियर आई हैव अ CS3। याद करो चीजें जरा एक बार। ये अपना D यहाँ पे लिखा मैंने, देन वी हैव H यहाँ पे लिखा मैंने, और ये है I हाईवे। तो इसको अगर मैंने फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, या नहीं भी किया तो भी चलेगा, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, इसको प्रायोरिटीज दो। सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1, उसके बाद कार्बन आएगा, एटॉमिक नंबर से हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, और बाद में ड्यूटेरियम आएगा, लास्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा 4। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बैक साइड में लेके जाना है, तो डबल स्विचिंग करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो बैक डॉट का, डॉटेड लाइन का मतलब क्या? इट इज गोइंग इन, तो ये अंदर है। सो हाउ आर द व्हाट, कैसे हम लोग, सो मूव योर आईज, ये जो बैक साइड वाला है उसको पीछे ही रखना, होल्ड कर रखना, एंड मूव योर आईज। हाउ आर वी मूविंग? 1 2 3, इट इज गोइंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? S। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड डायरेक्शन, तो क्या होगा? S। अभी चलो इधर देखो, R के जगह पे मैंने CH3 लिखा, और Nu के जगह पे मैंने OH लिखा, OH। हाँ, तो ये हो जाएगा CH3। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैंने? OH। देन वी हैव व्हाट, दिस, ये जैसा है ड्यूटेरियम, एंड हियर वी हैव अ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में? तो अभी इसको नंबर 1 जाएगा, बिकॉज ओ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका होता है। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 2, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मास नंबर देखते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखते हैं। इसलिए ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 4। इसको पीछे ही रखो। अभी देखो अपने, नाउ मूव योर आईज, हाउ आर वी गोइंग? 1 2 3। यहाँ पे कैसे जा रहे हैं हम लोग? हाउ आर वी मूविंग? 1 2 3। प्लीज एक बार अपने रूल्स पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मैंने रूल्स लिख के दिए तुम लोगों को। प्लीज रीड द पार्ट 1 2 3। ओके, सो इसका ये क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? R हो गया। समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? ये है स्टीरियो केमिस्ट्री। हाँ, यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री। stereochemistry of SN2 reaction। तो उसके लिए ये एग्जांपल है हमने, ये क्या है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? S। हाँ, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? R। तो अगर समझो मैंने ये बोला लियो रोटेटरी, तो ये क्या होगा? एक्सो रोटेटरी रहेगा। हाँ, दिस इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे प्लस साइन लिख देता हूँ, राइट? सो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये, बाय प्रोडक्ट क्या होगा? I माइनस होगा। लिख लो जरा, SN2 मैकेनिज्म
क्या होता है इन्वर्जन? इन्वर्जन मतलब उल्टा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. This inversion of configuration is also called as Walden inversion. What we call it as a Walden inversion. Walden, name of the scientist. Walden inversion. Please write down. Yes. किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? प्लीज मेक योर नोट्स परफेक्ट. ऑर्गेनिक में नोट्स इंपॉर्टेंट है. तो टेक्स्ट बुक में सब ढूंढते रहोगे तुम लोग. यस डन एवरीबॉडी. हो गया सबका? यस डन. अवनी, सानिया, डन. चलो फिर अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. Energy profile diagram is a graph plotted between potential energy versus reaction. Reaction rate of reaction बोल सकते हो, reaction progress बोल सकते हो.
सो वाई एक्सिस पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस. Now if you plot a graph, अगर ग्राफ प्लॉट किया गया, see how the graph is looking like. Initially the potential energy of reactant increases, it reaches to maximum, and then further there is decrease in potential energy. ऐसे होगा. ये क्या है? reactant. So substrate as well as nucleophile. This is what product. What does this stand for? Highest energy state, transition state. Okay. Now, if I consider this difference, this difference is nothing but your, क्या हो सकता है ये बोलो? This is nothing but delta H. और ये क्या है? What does this stand for? This is called as activation energy. Okay, this is your activation energy, and this is nothing but what? Delta H, है ना? So जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा उतना रिएक्शन ये स्लो रहेगा. डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव होगा, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन, इज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अंडरस्टूड? प्लॉट दिस ग्राफ अगेन. लास्ट टाइम किया है, वापस एक बार प्लॉट करो. ये ग्राफ भी तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसके आगे वाला जो पार्ट मैं तुम लोग को समझा रहा हूं इज नॉट देयर फॉर द बोर्ड्स. 12th स्टैंडर्ड में नहीं है. तुम लोग सुनो, सिर्फ जो 12th स्टैंडर्ड में लोग है वो लोग. ओके, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, इट्स अप टू यू. बट बाकी सब लोग जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं, सीईटी, जेईई मेंस, जो भी कुछ, ओके, वो सबको ये लिखना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन. ओके, क्या लिखेंगे हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन. फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ R. R मतलब अल्काइल ग्रुप. नेचर ऑफ R means alkyl group. Okay, it was observed that जो कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, if that carbon is highly branched और जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो वो SN2 रिएक्शन से रिटार्ड होगा. मतलब it shows less SN2 reaction. See, what is the condition for SN2 reaction? Backside attack. और बैकसाइड अटैक तभी इजी होगा ना अगर बैक साइड में अल्काइल ग्रुप छोटे रहेंगे.
समझ में आ रहा है? या स्मॉल ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Therefore, remember that the degree of alkyl group. So मैं ऐसे बोल सकता हूँ मिथाइल हलाइड. देखो हाइड्रोजन है ना, मिथाइल मतलब कार्बन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन व्हिच आर वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट एटम ब्रदर. तो इसलिए वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है. देन प्राइमरी अल्काइल हलाइड आर CH2X. Then secondary alkyl halide are CHX. और टर्शरी में SN2 रिएक्शन होता ही नहीं. टर्शरी में SN2 रिएक्शन होता ही नहीं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्यों नहीं होता? बिकॉज ये बल्की ग्रुप है. तो बल्की ग्रुप होने के कारण बैक साइड से स्टेरिक रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा. इसके लिए न्यूक्लियोफाइल. So here there is no SN2 reaction. Can you remember this? हाँ. So सबसे easily किसमें होगा? मिथाइल में, प्राइमरी में. मिथाइल और प्राइमरी easily undergo SN2 reaction. Okay? समझ में आया? ये A पार्ट हो गया. A. B. Please don't forget this. Same way. अगर समझो ऐसा है CCCX ऐसा है, ओके, बीटा ब्रांचिंग. तो जितना सेम कंसेप्ट, मतलब अगर समझो यहाँ पे मैंने ब्रांच रखा ऐसे ऐसे और यहाँ पे मैंने ऐसे रखा, सेम कंसेप्ट ना. ध्यान से देखना, ये डायरेक्टली अटैच था, इसको CH2 अटैच है, बट दिस बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट ना, दिस होल बल्की ग्रुप. ये देखो ये और बल्की हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐसे बीटा ब्रांचिंग, बीटा गामा डेल्टा जो भी कुछ रहेगा, बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन इजीली होगा देन दिस. अंडरस्टूड? लिख लो. तीसरा पॉइंट भी एक मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पे है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हेलो, यस, हेलो, यस, यस सर. ऐकू येत आहे? हो आता है. मगाशी नेटवर्कचा इश्यू असेल. So presence of electron withdrawing groups increases rate of SN2 reaction. वो तो कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था. Now what are the electron withdrawing group? देखो यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप, ओके, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, उसके बाद C डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन ग्रुप, उसके बाद अल्कीन ग्रुप. तो अगर ये ग्रुप्स रहेंगे ना तो एटसेट्रा. सो कैन यू सी हियर, मतलब ये किसको अटैच होने चाहिए? ये वाले कार्बन. समझ में आ रहा है? कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ हैलोजन उसको अटैच होने चाहिए. कार्बन बॉन्डेड विथ हैलोजन.
मतलब इसके आगे मैं लिखिए एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ. So if I write this way, example बता रहा हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X ऐसे होना चाहिए, ग्रेटर देन CH3 CH2 CH2X. समझ में आ रहा है? और CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2X ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHX. ओके, उसके बाद NO2 नाइट्रो ग्रुप CH2 CH2X ऐसे. written fast. Yes, done everybody. Yes, sir. ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. strong nucleophile favors SN2 reaction. SN2 reaction. Okay, strong nucleophile favor SN2 reaction. Third point. If you are talking about strong nucleophile, I'll tell you the order of nucleophilicity. So याद रखने की जरूरत नहीं है. Okay, just I am writing order of nucleophilicity. ओके, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है. SH माइनस, SH को बोलते हैं थायोल, इज ग्रेटर देन CN माइनस, is greater than I minus,
is greater than OH minus is greater than Br minus is greater than PHO, मतलब phenoxide ion is greater than CH3CO minus is greater than Cl minus is greater than F minus is greater than ROH alcohol is greater than H2. So अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अनायंस है दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स. एक सेकेंड थिंग, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना. फोर्थ नहीं, थर्ड पॉइंट है अपना. द थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. सो पता है ना SN2 में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक ग्रुप जा रहा है एंड दूसरा ग्रुप आ रहा है ना. सो अगर वो लिविंग ग्रुप इजीली जा रहा है तो इनकमिंग ग्रुप कैन इजीली ऐड, राइट ना. सो आई कैन से गुड लिविंग ग्रुप increases rate of SN2 reaction. ठीक है. So with respect to alkyl halide, alkyl iodide is a I minus, is more reactive than RBr, than RCl, than RF. Okay. Fourth point, nature of solvent. फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे भी लिख रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नाउ सिंस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ओके, यहाँ पे देखो ना, चार्ज स्पीशीज नहीं बने, मतलब पार्टिकल वो अनस्टेबल है. बट अगर मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट होने चाहिए वो पोलर सॉल्वेंट होने चाहिए, बट दे शुड नॉट प्रेजेंट प्रोटॉन. सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, polar aprotic solvent, polar aprotic solvent favor SN2 reaction. Now what do you mean by polar aprotic solvent? बताता हूं, पहले ये समझ लेते हैं ऐसा क्यों. Because there is no formation of charge, नो सॉल्वोलिसिस, मतलब ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री होना चाहिए अटैक के लिए. अगर न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैंने वाटर लिया तो इसका जो पॉजिटिव पोल है ना वाटर का, वो क्या करेगा, इसको सराउंड करेगा. मतलब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, अभी पैक हो गया. सो इट कैन नॉट अटैक. तो मुझे ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल को सराउंड ना करे. ओके, समझ में आ रहा है. So इसलिए what we are going to do here, so no solvolysis of nucleophile. Okay, so यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा हूं. एग्जाम्पल है एसीटोन. Then there is one term called as a dimethyl formamide. Dimethyl sulfoxide. ये कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स. ठीक है.
Write down this. Yes, done. Chalo, let us go for the next one. Everybody done this part? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? Done, sir. संदेश Yes, sir. लिहिलं का? अच्छा तू नाही लिहित. स्वप्नील डन. Yes, sir. सोम सामंत, सोम आठवले. Yes, sir. Yes, sir. हरचंद्र, Yes, sir. आर्यन, गुड मॉर्निंग. Yes, sir. चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. SN1 रिएक्शन देखेंगे. What we are going to discuss? SN1 reaction. Just put the heading SN1 reaction.
SN1 रिएक्शन, तो इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक substitution unimolecular reaction. ठीक है, nucleophilic substitution unimolecular reaction. Now this reaction is actually taking place in a two steps mechanism. Okay, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक उसका देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो फीचर्स और characteristics of this reaction. First step, this reaction is taking place in two steps, है ना, two step mechanism. Two steps mechanism. Second point, first step is slow step and hence rate determining step. First step is slow step and hence rate determining step. Okay, one transition state for each step. So हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हाईली एनर्जेटिक स्टेट, हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज, अनस्टेबल. नेक्स्ट वन, काइनेटिक्स. Experimentally, it was observed that rate of reaction is directly proportional to concentration of substrate. Okay, that is alkyl halide. Or rate is equal to K into concentration of, here I am writing alkyl halide, क्योंकि हम लोग alkyl halide के बारे में बात करेंगे. जनरली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ेंगे बाद में, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ओके, देयरफॉर इसका पावर कितना है, 1 है. देयरफॉर दिस रिएक्शन is first order reaction, and in rate determining step we have a one species involved, therefore it is unimolecular. First order and unimolecular and unimolecular. Okay, there is racemization. स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, racemization of product. What do you mean by racemization? There is presence of dextro as well as Leo rotatory substance. Racemization of product. Okay, clear? Write down. और कुछ पॉइंट्स ऐड करने इसमें, एक मिनट इसको देखता हूं मैं. SN2 में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं. स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, formation of stable carbocation
stable carbocation favor SN1 mechanism. Therefore, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड हेंस फेवर्स द SN1 reaction. Electron releasing group stabilize carbocation and hence favor SN1 reaction. ठीक है? Electron releasing group stabilize carbocation and hence favor SN1 reaction. और rearrangement is possible. Rearrangement is possible. मतलब समझो एक पहला कार्बोकैटायन है सेकेंडरी और वहां पे ही in that structure only if there is shifting of a group so that they are getting more stable carbocation then it is possible. 1-2 shift जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, that is 1-2 shift is possible. ठीक है? Next point. ठीक है, इतना काफी है, वो हम लोग इस पे देखेंगे. Presence of alkyl. Just write down this. Write down this part. Yes, anybody having any doubt? चलो अभी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं. Mechanism of this reaction. How the reaction is taking place along with the energy profile diagram also. Suppose अभी मैं जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है वो पहले मैं लेता हूं and then I will explain you with the stereochemistry.
Okay. So I'll say example, alkaline hydrolysis of tertiary butyl iodide or halide. See here, I write CH3, CCH3. यहाँ पे भी आएगा CH3 and here we have a I. Okay, अभी step 1. Now see, nucleophile cannot attack from backside because देखो ये क्या है? These are nothing but what? Bulky methyl group, which do not allow nucleophile to attack on this carbon. But in doing so, they are colliding with each other, or because of the collision, what is happening? The CI bond starts breaking. तो इसकी वजह से एक transition state बनेगा. The first transition state, which is neutral, where there is a breaking of bond. So ये delta minus और कार्बन जो हो जाएगा delta plus. This is called as transition state 1. Now in the next step, there is a formation of ये CI bond break हो गया तो heterolytic fission होगा. Since iodine is more electronegative than carbon, what is happening? Iodine takes away this electron pair. Therefore, carbon gets positive charge. इसको बोलते हैं tert butyl carbocation. Tert butyl carbocation. ठीक है? Now step 2. Now in a step 2, ये slow step है. इसलिए इसको क्या बोला मैंने? Rate determinism. Now in the second step, there is a attack of nucleophile. देखो पहले step में nucleophile है ही नहीं. First step में we do not have a nucleophile. So nucleophile will attack. Now if you see the geometry of tertiary butyl carbocation, this carbon is sp2 hybridized. And geometry क्या होगा? Trigonal planar. अच्छा, जब मैं ट्राइगोनल प्लेनार बोलता हूं तो ये कैसे रहेगा? ये मैं एक्सप्लेन करता हूं. इसको ना इशू ये है ना, ऐसा टेढ़ा वाला मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. चलो मैं इससे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. Just look at here. So here, tertiary butyl carbocation ये ऐसे रहेगा. Can you see now? So all these are in one plane. So nucleophile now can attack. कहाँ से कैसे अटैक कर सकता है? Because उसको अभी steric hindrance ना इधर से है, as well as the attack of OH minus बैक साइड से भी हो सकता है. बराबर कि नहीं? और वो प्रोबेबिलिटी कितना है? 50-50%. 50% फ्रंट साइड अटैक होगा, 50% बैक साइड अटैक होगा, राइट? So now there is a formation of one more transition state. Now this is a very fast. So that there is a formation of what? A transition state 2. What do you mean by transition state 2? Formation of bond delta H minus or here delta H plus. So this is called as
ट्रांजिशन स्टेट 2. सो व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है ना, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे रहेगा. अभी टर्शियरी ब्यूटाइल में तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मैं तुम लोग को बाद में बता देता हूँ कि ये कैसे होता है. वो ये देखो, ये ऐसे बनेगा ये प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम OH अपोजिट साइड में भी हो सकता है कि नहीं. That means we have stereochemically अगर देखा जाए तो we have two isomeric product, two stereochemical isomeric products. Okay, हाँ ये पहले लिखो, then I will explain this. सर Yes, सर ती सेकंड स्टेप जरा परत एकदा एक्सप्लेन करता का. ये ना. हाँ सर. So actually this tertiary butyl carbocation which is formed, which has a planar structure, trigonal planar structure. So all the atoms are in a one plane. Forget about the hydrogen because that carbon is sp3 hybridized. But ये जो carbocation है and these carbon atoms, they are in one plane. So nucleophile now experiences least repulsion, either from this side as well as from this side. So अगर मेरे पास 100 OH माइनस न्यूक्लियोफाइल्स है, 100 आयन, तो 50 ये साइड से अटैक कर सकते हैं, 50 ये साइड से अटैक कर सकते हैं. ओके, एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट, मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. तो मुझे ये एक प्रोडक्ट मिलेगा व्हिच हैज द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, as well as I will. अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया, I cannot explain you here. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, then we can explain that part, same mechanism. Okay, ये पहले लिखो, I will explain you that. This is the example you are supposed to write in boards. Boards में तुम लोगों को लिखना है और वो कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं तुम लोगों को. Yes, have you done this part? Done, sir. चलो, let us take another example. जहाँ पे we have a chiral carbonate. Okay, example. Let us take this example, CH3. This is H. We have I, C2H5. एक मिनट, मैं यहाँ पे C2H5 लिखता हूँ और this I write it as a not H, D लिखता हूँ, ड्यूटेरियम लिखता हूँ. ओके, और ड्यूटेरियम लिखता हूँ. Now, what is the step one? Step one क्या होगा? This is a RDS, rate determining step.
तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा. सो द फर्स्ट स्टेप जहां पे CI बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, ये बल्कि ग्रुप हो गया अभी D, and we have this bond is breaking, so delta minus delta plus, this is your transition state 1. Okay, now in the next step, now we have CH3, we have C2H5 and D. This carries positive charge. So this is what carbocation. We have tertiary नहीं बोल सकते because ये दो carbon attached है. But since the alkyl groups are attached, I can explain its stability because of the positive inductive effect. याद है ना positive inductive effect? Positive inductive effect और hyperconjugation से मैं इसका stability explain कर सकता हूँ. So ये हो गया अपना कार्बोकटायन. कार्बोकटायन के ऊपर कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 और ज्योमेट्री का है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये स्टेप 1 हो गया अपना. दिस इज स्टेप 1. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन अ स्टेप 2? इन अ स्टेप 2 दिस कार्बोकटायन कैसे, उसका ज्योमेट्री कैसे है? एक प्लेन में ना ये, राइट? सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेट अस कंसीडर OH माइनस. तो देखो पहले स्टेप में OH माइनस है ही नहीं. So the attack is possible on this from this side. So if I put this in one plane, Amrita, it is like this way in one plane. So the attack is possible either from this side, ये हो गया front side attack, और from back side, मतलब यहाँ से आएगा. Okay, OH minus. So what is the probability of this? क्या है probability? 50%. So the next step, ये fast step है, where there is a formation of what? CO bond. So अगर CO bond बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है? CH3. Here I am writing C2H5 and D, and we have a ion. ये bond बन रहा है D. So there is a formation of bond OH. This is delta minus, this is delta plus, this is dash dash है. ये bond बन रहा है, ये bond break हो रहा था यहाँ पे. Here the bond is breaking. Okay, this is not an inductive effect again ना, please be careful, नहीं तो तुम लोग सर arrow दिखाया inductive effect नहीं. This is the transition state 2. Now the next product, मैंने क्या बताया? अगर फ्रंट साइड अटैक हो गया तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? The configuration is same as that of the reactant. तो reactant में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? Here we have a OH plus और inversion of configuration, मतलब CH3 इधर जाएगा. Here we have a OH D. चलो करके देखते हैं. हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका. So if I want to calculate configuration, देखो, this is number 1, iodine gets number 1, है ना? अभी C2H5 दोनों जगह पे कार्बन कार्बन है, then we'll consider the next carbon, right? तो इसका please do not add mass. हम लोग को एडिंग नहीं करना है. Just we have to check the number of atomic number of carbon which is directly attached to the carbon. अगर वो कार्बन कार्बन सेम है, go to the next atom. ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया. फॉर्चुनेटली जो लीस्ट एटम है वो पीछे है, तो इसका ये क्या होगा? 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं हम लोग. कैसे जा रहे हैं? 1 2 3. वी आर गोइंग दिस वे. सो दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? S. चलो अभी इधर आ जाओ. ये नंबर 1 ही होगा, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3.
How are we going? 1, 2, 3. So this is S. What about here? ये हो गया 1. Oh, गड़बड़, यहाँ पे C2H5 होना चाहिए. ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3. ओ सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है. ये क्लॉकवाइज होना चाहिए. आर है ना ये? क्या हो गया? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सब लोग सो रहे हैं क्या? ये आर होना चाहिए. कोई बता नहीं रहा है मेरे को. हेलो ऑल ऑफ यू. यस सर. हाँ, तो बताया नहीं तुम लोगों ने आर. अब ये कैसे होगा? ये उल्टा जाएगा ना ऐसे. दिस इज गोइंग अप अपोजिट डायरेक्शन. ये हो गया एस. सो दैट मींस वी हैव व्हाट? आर एज वेल एज एस. मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, रिएक्टेंट अगर अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो और लियो का मिक्सचर रहेगा. जैसे ही अगर ये आर है तो प्रोडक्ट क्या मिला? आर और एस का मिक्सचर हो गया. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर. क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर? इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म. इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म. और ये ऑप्टिकली क्या होता है? मिक्सचर इनएक्टिव because of external compensation. Please write down this.
यस बालचंद्र, बोल ना. झालं काय म्हणतोयस? ओके ओके. यस एवरीबडी डन. यस सर. यस सर. Yes, sir. गुड. सो अभी हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी होगा और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा. So reaction progress का मतलब in terms of concentration of reactant, in terms of rate of reaction, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. As the अभी देखो कैसे होगा, ग्राफ देखो कैसे होगा. रिएक्टेंट का concentration बढ़ेगा बढ़ेगा reaches to maximum. ये हो गया अपना ट्रांजिशन स्टेट 1. उसके बाद there is the formation of an intermediate, that is carbocation, which has less energy than transition state 1. Again increases और फिर बाद में transition state 2 से product. This is your transition state 2. This is reactants और ये है products. And what does this stand for? This stand for intermediate. Intermediate क्या है? Carbocation. ठीक है? So now if we plot, मतलब अगर समझो मैंने ऐसे लिखा, ओके, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेल्टा एच. डेल्टा एच हो गया, करेक्ट. और दिस इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट. दिस इज आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी 2. कहा था. ठीक है. So this is called as activation energy 1. This is activation energy 2, and this is nothing but delta H. Now there are two peaks. Why two peaks? Because there are two transition states. So SN1 reaction में two transition states है. SN2 में one transition state. Write down. Next one, factors affecting rate of SN1 reaction. Factors affecting Avni, rate of SN1 reaction. मानसी आएगा? Oh, sir.
Good morning. So factors affecting rate of SN1 reaction. The first one is nature of alkyl halide. Nature of alkyl halide. अभी जो SN2 के लिए था ना उसका उल्टा यहाँ पे रहे. Okay. So rate of reaction, rate of SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. So जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना वो रिएक्शन क्या होगा SN1. Therefore reaction proceeds via rearrangement. Okay, यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं मैं. रीअरेंजमेंट जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना तो लोग और चीजें क्लियर हो जाएंगी. रीअरेंजमेंट इज फास्ट एंड does not affect rate of SN1 reaction. Affect rate of SN1 reaction. ठीक है. So यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा देखो. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, tertiary alkyl halide RCRR, a tertiary is more reactive than secondary, than primary, than मतलब इसमें तो होता ही नहीं. No SN1 reaction. Is that clear? समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं बात करूं अलाइल और अल्काइल में, मतलब अगर मैं बात करूं, ये एक एग्जांपल है इसका. दूसरा एग्जांपल ए लिखा है ए. सेकंड एग्जांपल है, समझो मेरे पास बेंजाइल अलाइड. बेंजाइल मैंने बताया था. बेंजाइल क्या होता है? देयर इज द बेंजाइल ग्रुप CH2X. हैलोजन इज अटैच्ड टू द sp3 का भी sp3 का. ये मोर रिएक्टिव है देन दिस. एरोमेटिक हैलाइड्स के लिए हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं. दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस ससेप्टेबल अंडर द SN1 रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, इसका रीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे X माइनस गया तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. थर्ड पॉइंट देखना, अलाइल हैलाइड. अलाइल हैलाइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये अलाइल हैलाइड है. दैट इज मोर रिएक्टिव, मतलब मोर SN1, मोर प्रोन टू द SN1 रिएक्शन देन द CH3 CH2 CH2X alkyl halide, than that of the CH2 डबल बॉन्ड CHX. इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड. ये क्या है? विनाइल हैलाइड. सो विनाइल हैलाइड में रादर SN रिएक्शन होता ही नहीं, ना SN1 होता है ना SN2 होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है. इसलिए अलाइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन पॉसिबल है. ठीक है. जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, बीटा ब्रांचिंग, उतना रिएक्शन क्या होगा? SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा. ओके. सो बीटा ब्रांचिंग, अल्फा और बीटा. अल्फा मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया. जितना अल्फा कार्बन पे तुम लोग अल्काइल ग्रुप रखोगे SN1 रिएक्शन होगा. बीटा मतलब नेक्स्ट कार्बन वाला.
तो जितना अल्फा और बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, SN1 रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, जो लास्ट में एग्जांपल लिया था ना मैंने SN2 के लिए, SN2 के लिए मैंने क्या बताया था, बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा, SN1 में इसके उल्टा होगा। तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिखना, सिर्फ वो रिवर्स ऑर्डर में लिखना। समझ में आया? यस, प्लीज राइट डाउन। So rather SN1 reaction is caused because of the steric hindrance. ये याद रखना. Why SN1 reaction is happening? Because of the steric hindrance. ये फर्स्ट फैक्टर हो गया अपना, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. राइट एंड फास्ट. अच्छा, एक चीज याद रखना, ये सब फैक्टर्स मैं तुम लोग को बता रहा हूं. Remember that SN1 reaction is combination of all factors. So sometime अभी यहाँ पे मैंने first thing तुम लोग को अल्काइल ग्रुप देखना है, उसके बाद नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये बाद में आता है. फर्स्ट सबस्ट्रेट का नेचर क्या है ये देखो, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, बेंजाइल है, अलाइल है, ये तुम लोग देखो, या विनाइल है या अराइल हैलाइड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा ये दिमाग में फिक्स कर देना कि जब भी whenever I am talking about SN1 and SN2, we give preference to substrate. अच्छा, अगर सबस्ट्रेट में टाई हो गया मतलब अगर दोनों एक जगह पे क्लोराइड है, एक जगह पे आयोडाइड है, तो SN1 रिएक्शन फास्ट दोनों में SN1 ही होगा, बट फास्ट किस में होगा ये देखने के लिए फिर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये चीजें मतलब फॉर बोर्ड पैटर्न इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते, ठीक है. दे आर कंसिडरिंग इन जनरल, मतलब जो जनरलाइज टर्म्स है, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, दैट्स इट. दे कंसीडर ओनली दैट पार्ट. बाकी वेरियस कॉम्बिनेशंस आर देयर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया फॉर द अल्काइल ग्रुप, these are all various combinations. Yes, everybody? Yes, sir. Now next one, nature of nucleophile. Second factor, nature of nucleophile. बहुत सारी चीजें तुम लोग को, मतलब ऑर्गेनिक में तो अभी तुम लोग को लिखना ही लिखना है. Are you practicing every day? You have to devote time every day in organic chemistry, नहीं तो केमिस्ट्री में तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे. I understand it may be painful for some of you. You may don't like it, but you have to do it. मतलब ऐसा समझ लो ना, ये दवाई है, दवाई कोई प्यार से आनंद से नहीं लेता. हाँ, तो केमिस्ट्री की बीमारी दूर करने के लिए you have to do everyday practice, every day at least 30 to 45 minutes. 30 to 45 minutes क्या करना है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, वॉच द वीडियोस, राइट इट अगेन. एक बार अपना ये चैप्टर खत्म हो गया ना, तो तुम लोग के लिए काम चालू हो गया. एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको बार बार लिखते रहो. जितनी बार तुम लोग लिखते रहोगे, सी यू हैव टू फॉलो दिस फॉर 2 months. After 2 months, you will be master in organic chemistry.
इज दैट क्लियर? ऐसा मत करना आज मैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव पूरा दिन करूंगा, यू विल वेस्ट योर टाइम और एंड में कुछ हाथ में नहीं आएगा. ओके ये दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू. They are doing the same way which they have done organic ना. अरे वो तो 10th में तो सिंपल था, इतने 2-3 करने का स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पे वैसे नहीं है. Now you see क्या क्या चल रहा है अभी यहाँ पे. So don't take organic lightly. Those who like do the work. Those who don't like, those who hate, take it as a medicine. But daily करना है. 2 महीने कंटिन्यूअसली 2 months अगस्त और सितंबर अगर ध्यान से करोगे ऑर्गेनिक, आई एम टेलिंग यू यू विल बी मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और तुम लोग का केमिस्ट्री का स्कोर एकदम बूपिंग रहेगा. ठीक है. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन. वीक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज क्या है, देखो पहले स्टेप में उसको न्यूक्लियोफाइल को वेट करना है ना. वाई वेट करना है? क्योंकि ना उसको फ्रंट साइड अटैक कर सकता है ना वो बैक साइड अटैक कर सकता है. समझ रहे हो? न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड और इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड बिकॉज दोनों जगह पे क्या स्टेरिक रिपल्शन है. सो इट हैज टू वेट. और अगर वो वेट नहीं कर सकता तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ना वो एलिमिनेशन की तरफ जाती है रिएक्शन. अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने यूज किया. ओके so weak nucleophile favors SN1 reaction. ठीक है. मैंने वो SN2 में तुम लोगों को लिस्ट दिया है, वही फॉलो करना तुम लोग. ठीक है. थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. ना ये वैसे देखा जाए तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है ना, ये इन जनरल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज SN1 और SN2. कोई भी लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है, इफ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब जो इजीली जाएगा वो. द गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज फेवर्स SN रिएक्शन. सो वेदर इट इज SN2 और SN1 उससे फर्क नहीं पड़ता. सो गुड लिविंग ग्रुप increases rate of SN1 reaction. ठीक है. फोर्थ वन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सो पहले वाले केस में मुझे आयन कुछ नहीं मिल रहा था ना. हियर आई एम गेटिंग आयन, कार्बोकैटायन मिल रहे हैं, तो उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है. To stabilize that, I required a solvent which can hydrolyze. Hydration can be possible. So मुझे क्या चाहिए? Polar protic solvent चाहिए. So polar protic solvents. Polar protic solvent like water favor मैं लिखता हूँ stabilize carbocation by solvation. Okay, polar protic solvent like H2O stabilize carbocation by solvation, therefore increases or favor SN1 reaction. Favor SN1 reaction. Okay, ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट. और कोई फैक्टर बाकी है? बस 4 ही देखे थे ना, लास्ट में भी 4 ही देखे थे हमने. राइट.
चलो नाउ अभी जाते जाते हम लोग देखते हैं कि कौन से वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस halogen derivative में that we have to consider now, that we have to study. Okay, so most of the reactions are there in a textbook. Yes, anybody sleeping? No, sir. अवनी झोपली का रही थी, लेक्चर मध्येच नाहीये, नेटवर्क गेला. मानसी Yes, sir. जागी आहेस ना? हो sir. राणे साहेब Yes, sir. जागे आहात ना? हो. ओके. So done, everybody? Yes. चलो. Yes. So various reactions of alkyl halide we are going to discuss. Okay, the first one is alkyl halide. ये पहला न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे. So nucleophilic agent. So here I am writing aqueous KOH or alkalis, KOH or NaOH और Na2CO3 भी ले लिया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस. So X minus is replaced by OH minus. So we have ROH plus KX. ठीक है? Next one. Then alcoholic KCN, potassium cyanide. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है CN minus. So X minus is replaced by CN. So RCN plus KX. अभी ये रिएक्शन देखो जरा. अल्कोहलिक AgCN. ना ये KCN है ना, KCN ionic है. So KCN actually dissociate as K plus CN minus. So the attack through carbon is possible. But in case of silver cyanide, there is no dissociation possible. मतलब ऐसा dissociation नहीं होता. Now क्योंकि ऐसा dissociation नहीं होता, so nitrogen जिसके ऊपर lone pair है, वो attack करता है as a nucleophile, and therefore here the product is RNC plus AgX. This is called as alkyl cyanide or alkane nitrile. Alkyl cyanide or alkane nitrile. This is called as alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide or carbylamine. Carbylamine. Alkyl isocyanide or carbylamine. ठीक है? One more reagent, moist silver oxide. So moist silver oxide में Ag2O है. यहाँ पे actually nucleophile होता है OH minus. Moist मतलब AH2O plus Ag2O gives you what? AgOH. तो यहाँ पे product रहेगा ROH plus AgX. Next reaction है R-ONA. So R-ONA में nucleophile है R-O minus. So that we are getting ROR dash
इसको बोलते हैं ईथर प्लस NaX. This reaction is called as Williamson ether synthesis. Williamson's ether synthesis. Is that clear? Next देखो. R dash COOAG, इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है R dash COO माइनस, तो क्या होगा R dash COOR प्लस AgX. तो ये है एस्टर. दिस इज व्हाट एस्टर. लिख लो. जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखने की कोशिश करो. Done? Yes, sir. ये ऊपर वाला रब कर रहा हूँ. Next one. Suppose if I react with excess of ammonia, NH3, excess of NH3, we have RNH2. इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन और अमाइन प्लस HX. इसको बोलते हैं हॉफमन्स अमोनोलिसिस. हॉफमन्स अमोनोलिसिस. Hoffman's ammonolysis. अभी कुछ मेरी तरफ से और ये देखो अभी. If I react this with AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, अल्कोहलिक में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो है NO2 माइनस. So the attack is from the nitrogen. So the product is RNO2. Okay, plus AgX. सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी. Ag plus NO2 ब्रेक नहीं होगा.
बट अगर मैंने KNO2 के साथ रिएक्ट किया, KNO2, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ONO माइनस, so the attack is from this. This is called as a nitroalkane, and this is called the alkyl nitrite, alkyl O nitroalkane भी बोल सकते हैं हम लोग, और O nitroalkane भी बोल सकते हैं, alkyl nitrite भी बोल सकते हैं इस way. और एक है रिएक्शन जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये देखो, if I react with sodium acetylide, क्या था ना, सोडियम एसिटिलाइड, सो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रहेगा NaH एंड अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा. सो टू इंक्रीज द ब्रांच चेन इन अल्काइंस, ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं. राइट डाउन दिस. सो हियर वी स्टॉप फॉर टुडे. ये है अपना ऑल SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलोजन डेरिवेटिव. चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी बाकी है. हाँ, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हम लोग को देखना है. सो आज के बाद तुम लोग को क्या करना है, घर पे आके, घर जाके मतलब घर पे ही हो तुम लोग, क्या करना है, R और S कॉन्फ़िगरेशन एक बार रिवाइज करो. ठीक है, R और S कॉन्फ़िगरेशन एक बार रिवाइज करो. उसके बाद जितने भी SN1 और SN2 रिएक्शंस 2 बार लिखो, राइट डाउन 2 टाइम्स. और ये लास्ट वाले जो रिएक्शंस है वो एक बार लिखो. ये आज का ऑर्गेनिक का काम है तुम्हें. Is that clear? Again, I am telling you, do organic chemistry at least for half an hour daily. I am not interested. So आज मैं पूरा 10 घंटा बैठा और halogen derivative खत्म कर दिया. I am not interested in that. Is that okay, everybody? Anybody having any doubt here? किसी को डाउट है तो पूछो.